Hello everyone, welcome back to the channel. And today is 20 January 2026, and today's newspaper article is about Trump's latest tariff threat to Iran to have little impact on India. So जैसे कि आपको पता है ईरान यूएसए इनका क्या सीन चल रहा है। ट्रम्प ने जो टैरिफ थ्रेट जो किया है ईरान पे, सो बेसिकली इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी है। लिटिल इम्पैक्ट तो है, ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग इम्पैक्ट तो है। So let's read about it. So today's article is about this only. This will help you to gain knowledge, and let's start reading it without wasting any time. India's trade with Iran declined significantly after 2019 following US sanctions after against that country, while overall trade levels have been small. So basically इंडिया का जो ट्रेड है ईरान के साथ वो डिक्लाइन हुआ है कब से 2019 से। फॉलोइंग यूएस सेंक्शंस, जैसे जैसे ही सेंक्शंस आने लगे हैं अगेंस्ट दैट कंट्री, तो ट्रेड वैसे ही छोटा छोटा मतलब कि स्मॉल होते गया, डिक्लाइन होते गया बेसिकली। India's overall trade scenario is not likely to face much of an impact if it were to stop trading with Iran in response to US President Donald Trump's new threat of a 25 tariff on any country doing business with Iran, official data showed. तो जैसे ट्रम्प साहब ने बोला है कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ बिजनेस करती है तो उसे 25% का उसे टैरिफ मिलेगा, ऐसे उसने थ्रेट किया है, डराया है बेसिकली, जो कि उसका काम है। However, it could temporarily impact some sectors such as rice, tea, fresh fruits, and essential oils as per the data. तो टेम्पररी इम्पैक्ट जो है वो देखा गया है कि कुछ सेक्टर्स जैसे कि राइस, टी हो गया, फ्रेश फ्रूट्स हो गए, एसेंशियल ऑयल्स, इस पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, पर टेम्पररी इम्पैक्ट पड़ सकता है। Effective immediately, any country doing business with the Islamic Republic of Iran will pay a tariff of 25% on any and all business being done with the United States of America. Trump posted on Truth Social early morning on January 13। अर्ली मॉर्निंग इन्होंने ये पोस्ट किया है कि 25% टैरिफ होगा जो भी ईरान के साथ बिजनेस करेगा। ये अर्ली अर्ली मॉर्निंग उठ के इन्होंने इतना टेक्स्ट किया। ओके, ठीक है। Mr. Trump actions are in reaction to the Iranian government apparent crackdown on the protesters in that country. बस फिर protesters start हो गए अपना झंडा लेके। India has a history of stopping or reducing trade with Iran in response to US actions. तो इंडिया का हिस्ट्री रहा है कि वो क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है या फिर रिड्यूस कर देता है ट्रेड ईरान के साथ, ठीक है। India's trade with Iran declined significantly after 2019 following the sanctions imposed on that country by the US. तो 2019 से इंडिया का जो ट्रेड है वो डिक्लाइन होता हुआ हमने देखा है, इसकी हिस्ट्री है बेसिकली। However, even prior to this, the overall trade levels had remained relatively small, with the two countries largely engaging with each others in few sectors. So basically देखा गया है कि डिक्लाइन ट्रेड हुआ है, लेकिन हमने छोटी छोटी चीज़ों का हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो किया ही है बेसिकली, ठीक है, मतलब हम रुके नहीं, हमने पूरा स्टॉप नहीं किया है, हमने बस रिड्यूस किया है, ठीक है। According to the trade experts, if India were to stop trading with Iran, while some sectors might feel short term pain, Iran's share is small enough that India will soon be able to find alternatives. So, ट्रेड एक्सपर्ट्स के हिसाब से बोला गया है कि अगर इंडिया स्टॉप कर देता है ईरान के साथ ट्रेड, तो उसे कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा उसको शॉर्ट टर्म पेन हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा लॉस हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन ईरान का जो छोटा सा स्मॉल शेयर है हमारे साथ, वो हम इंडिया जो है किसी और के साथ मतलब कोई और ऑल्टरनेटिव हो सकता है, मतलब कि हम ईरान को छोड़ के किसी और कंट्रीज को भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो हमें ज़्यादा मेजर हमें लॉस नहीं होगा। तो इंडिया के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, अगर हमें ईरान, अगर हमारा ईरान अगर पिक्चर में नहीं एग्जिस्ट करता तो वी हैव अदर कंट्रीज ऑल्सो, हम किसी और को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदर्स से most of what India exports to Iran can be classified as humanitarian products, and so it remains to be seen whether they will counted as doing business with that country. So कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया जो है ईरान को एक्सपोर्ट करता है ह्यूमैनिटेरियन प्रोडक्ट्स। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या ये बिजनेस, डूइंग बिजनेस जो है, क्या ये काउंट किया जाएगा विद दैट कंट्री, ये दूसरे लोगों को बड़ी पड़ी है।
As we all know that the trade with Iran is outside the sanctions imposed by US. Given the humanitarian nature of most of these products, the Federation of Indian Export Organization said in a statement, and therefore FIEO is of the view that impact of additional 25% tariff exposed by US on any country doing business with Iran with almost no impact on India. तो FIEO के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेड जो हो रहा है ईरान के साथ वो सैंक्शन के बाहर की बात है, मतलब कि जो यूएस ने किया है मतलब उससे पहले की बात है ये बेसिकली। तो इंडिया को कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ओके, लेट्स सी और क्या क्या होता है इसमें। Iran counted for 0.26%, that is $464.5 billion of India's total exports in FY26 up to November 2025. This share has been falling consistently since FY20 when Iran's share in India exports was 1.1%. सो जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 से ही ट्रेड डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था। तो अर्लियर इट वाज 0.26%, मतलब कि 764.5 बिलियन डॉलर्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं देखा जाए तो, बट एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज ये कम है। ठीक है। ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू ईरान और रॉपिंग 61%, यानी कि $756 मिलियन इन 2025-26 सो फार वाज बासमती राइस। सो बासमती राइस का एक्सपोर्ट किया था। If India were to stop exporting to Iran in response to US tariff threat, this is a sector that could face some pain in basmati rice exports to India, made up 13.1% of India's total basmati rice exports this year. सो बेसिकली बोला गया है कि जो ईरान को हम एक्सपोर्ट करते हैं बासमती राइस, अगर हमने ईरान को बासमती राइस एक्सपोर्ट करना हमने स्टॉप कर दिया या फिर रिड्यूस कर दिया जस्ट बिकॉज यूएस ने धमकी दे रखी है टैरिफ की 25% की। सो जो बासमती राइस का जो ये सेक्टर है यहाँ पे 13.1% का प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम इन द सेंस लॉस ही हो सकता है हम इंडियंस को। The other sectors that might feel an impact are tea, with Iran making up 5.6% of India's tea export, essential oils 5.4%, and fresh fruits 5.3%. Iran's share in India total imports stood at 2.7 in FY17 and was 0.04% as of November 2025. So बोला गया है कि देखो बासमती राइस में तो प्रॉब्लम होगा ही हुआ, 13.1% आपको लॉस होगा ही क्योंकि हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल्सो जो ईरान हमसे इंडिया से टी भी एक्सपोर्ट करता है, तो जिससे 5.6% का मतलब हमारे लिए अच्छा है, इंडिया के लिए 5.6% के हिसाब से अच्छा है कि हमें ट्रेड के लिए अच्छा है। पर अगर ईरान अगर हम उससे ट्रेड नहीं करेंगे तो हमें टी में, एसेंशियल ऑयल्स में, फ्रेश फ्रूट्स में, इन सब में हमको लॉस होने के चांसेस है। और बासमती राइस का तो 13.1% है, तो उसमें भी लॉस होने के चांसेस है। और ऑल्सो इंडिया जो ईरान का जो शेयर है इन इंडिया जो कि वो इम्पोर्ट करता है 0.04% एज ऑफ नवंबर 2025। तो वो 0.04% इंडिया के साथ उसका ट्रेड चल रहा है इम्पोर्ट के पर्सपेक्टिव से। So this was all about this article. I hope you find it interesting because इसमें इस इस आर्टिकल में they have told about कि अगर हम ईरान के साथ एक्सपोर्ट कम कर देते हैं सो हमें कितना लॉस हो सकता है। और 2019 से डिक्लाइनिंग देखा गया है ट्रेड में विद ईरान। और अगर हम डर जाए यूएस के टैरिफ से, 25% टैरिफ से, और हम उनको ट्रेड करना बंद कर दे सो बासमती राइस, टी, देन फ्रेश फ्रूट से, एसेंशियल ऑयल से, इन सब में आपको लॉस हो सकता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। ऑल्सो कमेंट डाउन व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, व्हाट्स योर पॉइंट रिगार्डिंग दिस। I'm hoping that you enjoyed and thank you for patient listening.